हमें तैयार कर प्रभु, हमारे आत्मिक कानों को खोल प्रभु कि हम तेरी रॉक को सुन पाए प्रभु। हमें तैयार कर प्रभु। मेरी प्रार्थना मेरे जीवित, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, The book of Matthew chapter 10 verse 1 onward we will see today. फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। Praise God. कोई बंदा में पढ़ना चाहता है? Otherwise we can go. Yes. পরে তিনি আপনার 12 জন শিষ্যকে নিকটে রাখিয়া তাহাদিওকে অশুচি আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দিলেন, যেন তাহারা তাহাদিওকে ছাড়াইতে এবং সর্বপ্রকার রোগ ও ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন। Amen. আমরা এখানে দেখব যিশু ডাকছেন, প্রভু যিশু ডাকছেন। কাদেরকে ডাকছেন? শিষ্যদেরকে ডাকছেন। কিন্তু শিষ্যরা তো যিশুর সঙ্গে ছিলেন, তাহলে প্রভু কেন ডাকছেন এদেরকে? আজকে যখন আপনি আপনার পরিবারের সঙ্গে আছেন, তাহলে আপনি কেন ডাকছেন? আপনি কাকে ডাকেন? আপনি ওদেরকেই ডাকবেন যাদেরকে আপনি চিনেন, যাদেরকে আপনি জানেন। আপনি নিজের সন্তানকে ডাকছেন কেন? উনি আপনার সন্তান, যে কেউ হোক। Because you know the person to whom you are calling. আপনি ওই লোক আর ওইটা ব্যক্তিকে ডাকছেন যাকে আপনি খুব ভালোভাবে চেনেন। তারপরে যদি আপনি পড়বেন, আপনি দেখবেন যিশু 12টা শিষ্যের পুরো নাম একটা লিস্ট দিচ্ছেন আর বলছেন যে আমি তোমাদেরকে ডাকছি। তারপরে বাইবেল বলছে কি ঈশ্বর ডাকছেন আর তারপরে ওদেরকে কাছে আসতে বলছে। আমেন। ঈশ্বর ডাকছেন ঠিক আছে, কিন্তু ঈশ্বর ওদেরকে কাছে আসতে বলছে। কেন? क्यों परमेश्वर उन्हें बुला रहा है और अपने करीब आने के लिए बोल रहा है? बाइबल में लिखा है फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर करीब। परमेश्वर आज हमें सिर्फ बुला नहीं रहा है, परमेश्वर हमें अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। आमीन। প্রভু চাইছেন কি আমরা ওনার কাছে থাকি। কেন? এখানে বাইবেল বলছে उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करे। প্রভু যিশু আমাদেরকে অধিকার দিতে চাইছেন। এই অধিকার কি? এই অধিকার অনেক বড় অধিকার। যখন আপনারা যে কোনো ঘর থেকে আসছেন, আমি জানি না আপনার মা বাবা নিশ্চয় এখানে এরকম, আমি জানি না কারা আছে তাদের মা বাবা যখন নিজের প্রপার্টি ডিভাইড করলো, আপনাকে ডাকলো, এটা তুই আয়, আমি অসুস্থ আছি, এবার আমি কবে মরে যাব আমি জানি না, চাকরি আয়, কেন? আমার কাছে আয়, পাশে বস, তোরা 5 ভাই 2 বোন 7 জন, দেখ আমার 5 কাঠা জমি আম্মা ফ্ল্যাটে আছে, মানে ওর পাশে, আর 2 কাঠা জমি ঘোলাতে আছে, আর 10 কাঠা জমি কল্যাণী হাইওয়েতে আছে, দেখ তোরা 7 জন, আমি চলে যাচ্ছি, ঝগড়া করবি না কিন্তু। ছোট ভাইকে দেখিস, ও এখনো কলেজে আছে, মা বাবা এগুলো শিক্ষা, এগুলো বলে যায়, আর বলছে এই প্রপার্টি তোমাদের অধিকার। এবার এর আগে আমরা মা বাবার সঙ্গে ছিলাম, আমরা জানতাম এগুলো আমাদের, কিন্তু স্পেসিফিক অধিকার আমাদের ছিল না। যখন মা বাবা ডিভাইড করলো, এটা তোমার, তার মানে এই 2 কাঠা আমার, আমি বিক্রি করতে পারি।
আমি এখানে ঘর করতে পারি, অধিকার, আমার প্রপার্টি, এটা আমার হয়ে গেল এবার। In the same way, Jesus called his disciples and gave the authority. যিশু নিজের শিষ্যদেরকে ডাকলেন আর বললেন যে আমি তোমাকে অধিকার দিচ্ছি। অধিকারটা কি? তুমি মন্দ আত্মাকে বের করতে পারবে। মন্দ আত্মা কি? ভূত, हाँ? पुरानी हवेली, सुनसान, क्या बोलते हैं पता नहीं, सुनसान इलाका, ऐसा कोई फिल्म है कि नहीं मालूम नहीं। आई एम सिंपली से वीराना। तू भागा मैं आया, तू छिपा मैं दिखा। I don't know. God is not saying this all those things. परमेश्वर ऐसे दुष्ट आत्मा को निकालने नहीं बोला। प्रभु आपको बाबा नहीं बनाना चाहता है। प्रभु आपके हाथ में झाड़ू नहीं देना चाहता है। ले मार इसको, निकल भूत। प्रभु आपको ये सब करने के लिए नहीं बुला रहा है। তুমি মন্দ আত্মাকে বের করবে, তার মানে নেই ঝাঁটা দিয়ে দিয়েছে মার। No, God has given the word in our mouth. ঈশ্বর আমাদেরকে কিছু শব্দ দিতে চাইছেন আমাদের মুখে। যখন আমাদের পরিবারে অশান্তি হচ্ছে, যখন আমাদের পরিবারে সমস্যা আমরা দেখছি, আমরা কি করি? আমরা চুপচাপ কাঁদছি। Somewhere in the corner in our home we are crying. हम लोग किसी घर के कोने में जाकर रो रहे हैं चुपचाप। प्रभु यीशु बोलছেন তুমি তোমার অধিকার ব্যবহার করো। তুমি তোমার ঘরে যিশু নামে বলো আমি শান্তি চাইছি আমার ঘরে। তুমি তোমার ঘরে বলো যিশু নামে আমার প্রত্যেকটা প্রবলেম তুমি দূর করো। কেন মন্দ আত্মা সবসময় আমাদের জীবনে প্রবলেম আনে। মন্দ আত্মা সবসময় আমাদের জীবনে কষ্ট আনে। মন্দ আত্মা সবসময় আমাদের লাইফকে কনফিউজ করে দেয়। Why? You know, যখন আমরা আত্মিক জায়গা থেকে উইক হয়ে যাই, আমাদের বাড়িতে অশান্তি বেড়ে যায়। আমার সন্তানরা কথা শুনছে না, কেন শুনবে? কারণ মন্দ আত্মা কাজ করছে। ঈশ্বর বলছে আমি তোমাকে অধিকার দিচ্ছি, তোমাকে নিতে হবে। তুমি যদি এই অধিকার রাখো, তুমি যিশু নামে বলো, দেখবে তোমার পরিবারে শান্তি আসবে। আমরা আমাদের অধিকার ব্যবহার করতে পারছি না। বাইবেল কি বলছে? अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालो और सब प्रकार की बीमारियां, सिर्फ छोटा मोटा बीमारी नहीं, सब प्रकार की बीमारियों पर क्या किया? अधिकार दिया कि उन्हें निकालो और सब प्रकार की जितने भी तरह की बीमारियां, जितने भी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोविड-19 हो। इस कोविड-19 से तो हम लोग ऐसे डर रहे हैं। पिछले संडे भी मैं प्रचार किया था। लास्ट संडे ऑल्सो आई प्रीच। हम लोग इतना डर रहे हैं कोविड-19 से, इस वायरस से इतना डर रहे हैं कि मैं क्या बोलूं आपको। थोड़ा सा भी खांसी होता है तो बस गर्म पानी देना, खांसी हो रहा है। अब पहले खांस रहा है, जोर से हंसिया, जोर से हंसने तक खांसी आता है ना, उसके बाद आप बोलते हैं कोई बात नहीं, पानी पिलाइए, ठीक है। अभी थोड़ा सा भी खांसी होने से पानी में गोली डाला था, मधु भी डाल के देना ताकि वायरस खत्म हो जाए। अरे तुमको कुछ हुआ ही नहीं है, तुम ऐसी बात क्या? इसीलिए बहुत बार सुबह सुबह किसी को गैस का खांसी होता है। हो गया कोरोना। ऐसे लोग जरूर मुझसे कांटेक्ट करें, हम आपको मेडिकल कॉलेज में ले जाएंगे।
और सच में कोरोना करके भेजेंगे। मतलब भूत ही उतर जाएगा, कोरोना कोरोना हो ही जाए कोरोना। अरे क्यों करते हो? परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आमीन। हर एक बीमारी के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी को चंगा कर सकते हैं। हम हर एक वायरस को, हर एक तरह की रोग बीमारी को हम डांट सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर चंगा करेगा। आमीन। What they did? वे लोग क्या किए? 7 में और 8 में मैं पढ़ता हूं आपके लिए। और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। ये समय है लोगों को प्रचार करने का। This is the time to preach your neighbors. আপনার প্রতিবেশীকে প্রচার করুন। আপনার ফ্রেন্ড, আপনার বন্ধু বান্ধবীদেরকে ফোন করুন আর বলুন যে যিশু আপনাকে ভালোবাসে। আমি কি 2 মিনিট প্রার্থনা করতে পারি? আপনি দেখবেন আপনি যখন নিজের অধিকার ব্যবহার করবেন ওরা আশীর্বাদ পাবে। আমরা এত ভয়তে আছি, আমরা ভাবছি চার্চে যাব, ভুল হবে, তাহলে তো ভাইরাস হয়ে যাবে। तुम बाजार गया था तो नहीं हुआ था कोरोना। इधर तो 25-26 है, बाजार में तो 100 से ऊपर आदमी। I don't know. This is the time. This is the Kairos moment. This is the Kairos time. আপনাকে অন্য কেউ যিশুর নামে বাঁচাতে হবে। আমেন। বাইবেল আপনাদেরকে বলছে, ঈশ্বরের বাক্য বলছে, তুমি প্রার্থনা করো রোগ সুস্থ হবে, তুমি প্রার্থনা করো অলৌকিক কাজ হবে। তোমাকে যিশু নামে প্রার্থনা করতে হবে। নেক্সট স্টেপ, how they were provided। 9-10 বলছে, अपने पटुकों में ना तो सोना ना रूपा ना तांबा रखना, माल के लिए ना झोला ना कुर्ते ना जूते ना लाठी, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। आज इस पूरे वर्ल्ड में अधिकतर लोग 3 चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। 3 चीज जरूर चाहिए। रोटी चाहिए यानी भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए और घर चाहिए। बाइबल बताती है कि इन सारी चीजों की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को जानता है। প্রভু আমাদের দরকার জানেন কি আমাদের কি দরকার। প্রভু নিশ্চয় আমাদের জীবনে অলৌকিক কাজ করবেন। আমেন। আজকে আমরা শুধু ফ্যামিলি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছি। আমরা প্রায় প্রার্থনা করি আমার স্বামী, আমার ওয়াইফ, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার মাসি, আমার চাচি, আমার 95% people ওরা শুধু নিজের ফ্যামিলির জন্য প্রার্থনা করে। সেই জন্য আমাদের জীবনে আশীর্বাদ দেখা যাচ্ছে। আমি খুব পার্সোনালি কথা বলছি। আমার ওয়াইফের যখন শরীর খারাপ হয়, আমার ওয়াইফ আমাকে রিকোয়েস্ট করে, বলে প্লিজ আমার জন্য প্রার্থনা করবেন, আই এম নট ফিলিং গুড। আমি ভুলে যাই অনেকবার প্রার্থনা করতে, কিন্তু আমাকে যদি কেউ ফোন করে, যদি মেসেজ আমি দেখলাম হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, যদি কেউ প্রেয়ার রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে, আমি নিশ্চয়ই ওনার জন্য প্রার্থনা করি। আমি ভুলি না, কিন্তু আমি আমার ফ্যামিলি ভুলে যাই। Sometimes I forget my family to pray, but I remember all of you. Because 95% আমার প্রার্থনা অন্যদের জন্য হয়, 5% আমার ফ্যামিলির জন্য হয়।
95% प्रार्थना, इसीलिए परमेश्वर अपना फेथफुलनेस मेरे ऊपर सब समय रखता है। এই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি না ঈশ্বরের শান্তি, ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমাদের পরিবারে। আজকে অনেকজন বলে, স্যার आप जब से घर में आए, আপনি ঘরে এসেছেন, প্রার্থনা করেছেন, ঈশ্বর অনেক আশীর্বাদ করছে, ঈশ্বর ভালো রেখেছে সবাইকে। ঈশ্বর বলছেন, ঈশ্বর আপনাকে ব্যবহার করতে চাইছেন এই জায়গায়। এখন চার্চ অনেক বড় হয়ে গেছে, এখন আমার যাওয়া খুব প্রবলেম সবার ঘরে। আপনাকে যেতে হবে, আপনি যেখানে থাকেন ওই পাশে বাড়ি আপনাকে যেতে হবে। আর আপনি যখন যাবেন, বাইবেল বলছে 11 বলছে, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। তার মানে হচ্ছে আমরা যেই ঘরে যাব, যে কোনো ঘরে আমরা যাই, ঈশ্বর আমাদের দ্বারা ওই ফ্যামিলিকে আশীর্বাদ করবে। আমেন। আমরা যেখানেও যাই, ঈশ্বর আমাদেরকে ব্যবহার করবে ওই ফ্যামিলি আশীর্বাদ। আমেন। আজকে যদি আমার জীবন থেকে যদি আপনি আশীর্বাদ পাচ্ছেন, তার মানে আমার জীবনে যা কষ্ট আছে ওটা অটোমেটিক ঈশ্বর সলভ করবে। কেন? কেন আমি অন্যদের জন্য প্রার্থনা করছি, যিশু আমার জন্য প্রার্থনা করছে। কেন? বুক অফ রোমান্স বলছেন যিশু নিজের পিতার থেকে প্রার্থনা করছে। আমেন। Don't be selfish in this time. ये एक ऐसा समय है कि एक दूसरे को बोझ को उठाओ और सबके लिए प्रार्थना करवाओ। সবাইকে প্রভুর বার্তা দিয়ে দিন, প্রত্যেককে সুসমাচার শোনান। যদি আপনি প্রভুর কথা জেনেছেন, অন্যকেও দিন। তারপরে কি বলছে? তুমি ফ্রিতে পেয়েছো, তুমি ফ্রিতে দাও। অনেকজন আছে, তুমি পয়সা দেবে তাহলেই আমি প্রার্থনা করব, তাহলে ওরা যিশুর লোক না। বাইবেল কি বলছে? तुमने सेक में पाया है, सेक में दो। আমেন। যিশু, আমরা যিশুকে ফ্রি পেয়েছি। আমেন। God has given his life in free of cost. We don't have to pay a single penny for his death and for his life. আমরা 5 পয়সাও দিলাম না যিশুকে। যিশু ফ্রিতে এই সুন্দর জীবন আমাদেরকে দিয়েছে। আমি আপনাকে বলতে চাইছি কি ঈশ্বর আপনাকে ব্যবহার করতে চাইছে। শুধু আমি প্রার্থনা করলে আশীর্বাদ হবে এটা নয়, আপনাকেও দাঁড়াতে হবে নিজের জায়গায়, আপনাকে অধিকার ব্যবহার করতে হবে। বাড়িতে অশান্তি, যিশু তুমি দয়া করো, আমি বাড়িতে শান্তি দেখতে চাইছি। অধিকার ব্যবহার করুন, ঈশ্বর দিয়েছেন আপনাকে। প্রভু বাড়িতে এইভাবে কেন হচ্ছে? যিশু তোমার নামে আমি বলি, তোমার নামে বলি যিশু, আপনি দেখবেন সবকিছু সুন্দর হবে। প্রভু আমি অসুস্থ হয়ে গেছি, যিশু তোমার নামে আমি প্রার্থনা করি, আপনি দেখবেন ঈশ্বর ইন্টারফেয়ার করবে আপনার লাইফে। প্রভু দখল দেবে আপনার জীবনে। প্রভু যখন দখল দেয় এটা ভালো আমার জন্য। আমেন। When God interferes in our life, it is good for us so that He can lift you up. প্রভু আপনাকে আরো উঁচু তুলতে পারে। Amen. Because I have seen in my life, আমি আমার জীবনে যা দেখলাম, আমি একটাই জিনিস ডিসকভার করতে পেরেছি আমার লাইফে, যে আমি ঈশ্বরের দখল আমার জীবনে অনেক উন্নতি এনেছে। अगर परमेश्वर का दखल हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन सब कुछ ठीक है। अगर आप परमेश्वर से दूर दूर रहेंगे, चल जाए कि नहीं जाए, कोरोना होगा कि नहीं, पर होगा तो कोरोना घर में बैठे बैठे ही होगा।
घर में से सोए हैं, कोरोना तो नहीं होगा, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, टीवी ऑन, टीवी से ही निकल के ढुक जाएगा तुम्हारे ऊपर। देखेगा कोरोना का ऐसे ऐसे जो चेहरा है वही मुंह में आके ढुक जाएगा। खांसी के হচ্ছে দরজা বন্ধ, সব বন্ধ। होगा कोरोना, क्यों घबरा रहा है? बड़े बड़े फिल्म स्टार को कोरोना हो जा रहा है। आपका घर तो गली में है, आपका घर तो छोटा छोटा घर है, उन लोगों के घर में हवा में नहीं ढुक रहा है पर कोरोना ढुक जा रहा है। कहाँ पटक दे रहे हैं उन लोगों को ले जाके? हॉस्पिटल में। What I'm trying to tell you, परमेश्वर ने हमें किसी और मकसद के लिए बुलाया है। आइए हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, आइए हम दूसरों को सुसमाचार प्रचार करें, आइए हम दूसरों को भी प्रभु के पास लाएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमें भी आशीष करेगा, हमारे बच्चों को आशीष करेगा, हमारे घर में आशीष करेगा। पीछे हटना हमारा काम नहीं है, आगे बढ़ना हमारा काम है। आमीन। क्योंकि हम पीछे मुड़ने के लिए नहीं बुलाए गए, हम आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आगे बढ़ें तो सबसे पहले माँ बाप को आगे बढ़ना होगा। अगर माँ बाप ही आगे नहीं बढ़े तो आप बच्चों को क्या बोलोगे? ए आगे बढ़, पर वो उधर ही खड़ा है। ए आगे बढ़, उधर ही खड़ा है, तुम तो बढ़ा दे। माँ बाप दुआ प्रार्थना नहीं करता है पर बच्चों को प्रार्थना करेছিস, बाइबल पढ़ेছিস। माँ तो पूरा सीरियल में लगी है, क्योंकि इस लॉकडाउन में पुराना सीरियल फिर से रिपीट किया था और पूरा সত্যি রে আমি এগুলো দেখতে পেলাম না, এখন দেখতে পাচ্ছি। তাই ও मजे से देख रहा है। ए बाइबल पढ़े ना, एक बोइटा होते कंप्लीट तो लॉकडाउन में क्या करेगा? फिल्म देख रहा है बच्चा। और कितना बच्चा हमारा चर्च का बाइबल पढ़ रहा होगा, प्रार्थना किया होगा, और हम जब ग्रुप में बोल रहे हैं सब बाइबल पढ़ रहे हैं, मेरा बच्चा नहीं पढ़। तू पढ़ेছিস? पढ़, तुम तो पहले सीरियल तो देख ले अपना जाके, तब अपना बच्चा को बोलना बाइबल पढ़ और प्रार्थना कर। अपना खुद ठिकाना नहीं, इंजन का ठिकाना नहीं है। डब्बा को चाहता है कि स्टेशन पहुंच जाए, इंजन तो पहुंचे तब तो डब्बा पहुंचेगा। पहले हमें उदाहरण बनना है, तब बच्चे ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे हमें। मैं यीशु सही रास्ते पे चला, इसीलिए चेले भी उनको ठीक पकड़ के सही रास्ते पे चल रहे थे। आमीन। और प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, प्रभु আমাদেরকে অধিকার দিয়েছে, আমরা বলবো ঈশ্বর কাজ করবে। আমেন। আমরা যিশু নামে বলবো যিশু অলৌকিক কাজ করবে। প্রভু আমাদেরকে বোবা থাকতে বলছেন না, প্রভু আমাদেরকে বলতে বলছেন। আমেন। ওটা কি? পরের নিন্দা নয়, কারোর অপমান নয়, কি বলছেন? আশীর্বাদ বলো। আমেন। বলো সুস্থতা, বলো ঈশ্বর তোমার জীবনে কাজ করবে। যখন আমরা বলবো ওদের জীবনে তো হবে, কিন্তু ওর থেকে 1000 गुना আমাদের জীবনে হবে। आमेन। हालेलुया। 2 दिन बाद टांग उठा के चला जाएगा, बोलेगा लास्ट में কথা বলতে পারলো না, गया हेलो भाई। उससे अच्छा 2 दिन का जिंदगी है, प्यार से बात करो, सबसे मिलो, सबसे प्यार करो। आप जब ऐसा करोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको नींद बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा नींद आएगा। सबको प्यार करो, सबसे मिलो। मैं 2 दिन पहले मैं 2 सप्ताह पहले बता रहा था, मेरा एक फ्रेंड हमसे बहुत छोटा है, घर में सोते सोते मर गया ना। उसको कोरोना था ना कुछ था, बहुत छोटा था, हमसे बहुत ही छोटा था, सोते सोते मर गया। तो अभी कल परसों मुझे पता चला रात में
कि उसको चाय में कोई जहर मिला दिया। कहीं वो चाय पिया था और उस चाय में ही जहर था। लोग चाय में भी जहर पिला रहे हैं, इधर लोग कोरोना से मर रहा है, लोग जहर पिला के मर रहा है, लोग अपने बीमारी से मर रहा है, लोग तकलीफ में मर रहा है, लोग के पास नौकरी नहीं है मर रहा है, लोग डिप्रेशन में मर रहा है, शरीर मर रहा है। अच्छा चीज क्या हो रहा है? अच्छा चीज हमारे पास है। हम चाहें तो इस समाज को बदल सकते हैं, हम चाहे तो नफरत को खत्म कर सकते हैं, हम चाहे तो मौत को हरा सकते हैं और जीवन दे सकते हैं। आमीन। हम कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करें। हमारे पास आशीष है। अगर हम दूसरों को आशीष देंगे, हमारा जीवन 1000 गुना आशीषित होगा। अगर हम दूसरों को श्राप देंगे, हम 1000 गुण फीट नीचे दबे हुए रहेंगे, हम कभी नहीं उठ पाएंगे। हम बोलेंगे प्रॉब्लम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रहेगा, सब समय रहेगा। आमीन। प्रभु ने हमें बेचारा होने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया है ना। बहुत लोग होता है मत देना उसको और खावा, मुंह भी खराब है उसका, रोटी और खराब हो जाएगा, मुंह में जाएगा तो उसका उसका मुंह भी मत देखो, उसका मुंह गरीब जैसे ही है। अगर आपके पास 2 रोटी है तो पूरा 2 रोटी खा ढिकार लेके चल जाना, एक भी मत खिलाना उसको। प्रभु ने हमें बेचारा जीवन नहीं दिया है। आप प्रार्थना करो, जिसके पास 2 रोटी है वो अपने से आके आपको 1 रोटी देगा। किसी को बोलने का जरूरत नहीं होगा, प्रभु बोलेगा उसको। आमीन। जब ईश्वर का दास भूखा था तो कौवे के मुंह में रोटी था और ईश्वर के दास को भोजन खिला के चला गया। प्रभु ने किसको कहा था खिलाने के लिए? कौवे को। आमीन। प्रभु काम करेगा। आपको किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है जो इसमें है। यीशु मसीह के नाम से आपको कहना है मेरी अच्छी नौकरी हो, यीशु मसीह के नाम से कहना है मेरा बिजनेस अच्छा हो, यीशु मसीह के नाम से कहना है कि मेरे फैमिली में शांति हो, यीशु मसीह के नाम से कहना है कि मेरे फैमिली में शांति हो, प्रेम हो। आप देखिएगा ये होगा, ये होगा, ये जरूर होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हर एक वायरस से आपको बचा सकता है, प्रभु आपको हर एक महामारी से बचा सकता है। इसका इलाज इसमें है, अधिकार इस्तेमाल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आप कहिए, देखिए आपके जीवन में काम होगा। आमीन, 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 आमीन।